Students, today we are going to read a very splendid story. This is the true story of France. In this story, the author Alphonse Daudet picturize the people of France, and in this lesson the author gives a message of patriotism. The patriotism may be in the form of mother tongue or in other way. Through this story, the author presents the main character M. Hamel. M. Hamel is the main character of this story, and he is a teacher in a school. And this character, this teacher M. Hamel, is a patriot. He is full of motivation to the people who is listening to him. And as a conclusion, we can say that the author wants to convey a message of patriotism through this story. So let us start reading this lesson and find out what is in deep in this lesson about patriotism. Lesson 1, the last lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये जो स्टार्टिंग इस स्टोरी की हो रही आई से, आई यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो इस स्टोरी का नरेटर है, वर्णन करता है, और उसका नाम फ्रेंज है, FRANZ, फ्रेंज. ये एक लड़का है, स्कूल गोइंग लड़का है ये, और ये सारी स्टोरी यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है. M. Hamel उसी स्कूल में टीचर हैं, और जब ये लड़का स्कूल जा रहा है तो कह रहा है कि रास्ते में बर्ड्स को देखता है, पर्शियन सोल्जर्स को देखता है. तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये इसको अट्रैक्ट करती हैं. और स्कूल के अंदर उसको जो टॉपिक मिला हुआ है वो इंग्लिश का टॉपिक पार्टिसिपल्स के ऊपर है, पर उसने वो तैयारी नहीं की है, उसके बारे में भी डाउटफुल है. तो और ये दूसरी चीज़ें उसको रोकती हैं कि वो स्कूल ना जाए, और इन चीज़ों की ओर उसका ध्यान जाता है. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Friends, जैसा कि वो अपने लिए आई यूज़ करेगा, नरेटर अपने आप को आई कहेगा. वो कहता है कि मैं बुलेटिन बोर्ड के पास गया. पिछले 2 सालों से वहाँ पर सारे बुरे समाचार आ रहे थे. बुरे समाचार क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो पिक्चराइज की गई है फ्रांस कंट्री के अंदर पिक्चराइज की गई है, और जो जर्मनी और उसके 1-2 मित्र जो देश हैं वो फ्रांस के कुछ एरिया के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं. तो इसलिए उनकी सेनाएं इनके ऊपर हमला करती हैं बार बार, और इनके सैनिक मारे जाते हैं फ्रेंच के. तो इसलिए कहता है कि ये बुरे समाचार वहाँ पे आते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं. देन एज आई hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, Bob, you will get to your school in plenty of time. कह रहा है कि इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे पास बहुत समय है, आराम से चलो. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all of breath.
आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स सांस फूल जाना, तो वहां तक जाते जाते सांस फूल गया। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out of the street, the opening and the closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and MML walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how I frightened I was. फ्रेंच जो कि स्टूडेंट है, वो कहता है कि आमतौर पे स्कूल के अंदर काफ़ी शोर शराबा होता था और बच्चे जो है यूनिसन में एक साथ मिलकर वहाँ पर लेसन को बोलते थे, दूर तक आवाज़ें सुनी जा सकती थी और एमएमएल टेबल के ऊपर अपनी रोड मारते थे, उसकी आवाज़ भी सुनाई देती। लेकिन आज स्कूल के अंदर ऐसा था जैसे संडे है, जैसे छुट्टी का दिन है, बहुत ज़्यादा छुट्टी थी। तो मैंने जैसे ही वहाँ जाकर कर देखा, मेरे क्लासमेट वहाँ पर बैठे थे लेकिन वहाँ पर चुप्पी छाई हुई थी। और जब मैं अंदर गया तो आप अनुमान लगा सकते कि मेरे चेहरे पे कितनी शर्मिलापन होगा। बट नथिंग हैपेंड। एमएमएल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends, अपने स्थान पे जाओ, we were beginning without you, आज तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और आज हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने वो ग्रीन कोट पहन रखा था जो वो बहुत कम ओकेजन्स पे या विशेष ओकेजन पे पहनते हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने छोटी काले रंग की कैप पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, और केवल इंस्पेक्शन के दिन ये पहनते थे, एंड प्राइज डेज या प्राइज दिन जो पारितोषिक का दिन होता। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉम, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली लाइक आवरसेल्व्स। लेकिन जो सबसे हैरानी की चीज थी वो ये थी कि पीछे के जो बेंचेस थे वहाँ पे गाँव के लोग बैठे हुए थे और वो हमारी जगह बैठे हुए थे जहाँ पर बच्चे बैठते हैं। Old Hoser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, several other besides, everybody looked sad, and Hoser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. कहने कि वो सभी वहाँ पर बैठे हुए थे और ओल्ड होजर जो है वो अपने वहाँ पर अंगूठे से गंदा हुई जो पैड स्टैम्प पैड वगैरह थे वो भी अपने साथ वहाँ पे लेके आया था। प्राइमर होता है एक प्रकार का कायदा, एक छोटा सा कायदा जिससे कुछ गिनती या अक्षर वर्णमाला सीखे जाते, वो भी लेके वहाँ पर बैठा हुआ था। Lying across the pages, while I was wondering about it all, M. Hemel mounted his chair, mounted बैठना, वो अपनी कुर्सी पे बैठे, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और एम हेमल ने कहा कि आज मैं तुम्हें अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. ध्यान दें कि ये करें कि आज अंतिम पाठ है और जर्मनी से और बर्लिन से, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, वहाँ से आदेश आया है कि एल्सेस और लॉरेन नाम के जो स्थान हैं उन दोनों स्थानों के ऊपर आज से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, यानी कि थोप दी जाएगी। ये कंट्री फ्रांस है लेकिन वहाँ पर भाषा पढ़ाई जाएगी जर्मन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और जो लास्ट लेसन, जो टाइटल है लेसन का, वो इसी कारण है क्योंकि ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इसको सुने। वट आ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए थंडर क्लैप का काम कर गए, यानी कि मेरे अंदर बिजली सी कौंध गई, मेरे अंदर एक कंपन सी पैदा हो गई, हैरानी हो गई मेरे को।
Oh, the races, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson, why I hardly knew write. How to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs, on going sliding on the shore. और अब जो है फ्रेंड्स को पश्चाताप हो रहा है कि मैं आज का मुझे पता ही नहीं था, अंतिम पार्ट है, मैं तो पक्षियों के पीछे दौड़ने वाला था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. कह रहा कि जो किताबें मुझे बेकार लगती थी, ग्रामर बेकार लगती थी, अब मुझे वो अच्छी लगने लगी हैं. MML2, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज. कह रहे हैं कि जो रूलर अपने हाथ में रखते थे, वो मुझे गुस्सा करते थे, वो हमारे ऊपर क्रैंकी लगते थे, हमें सनकी से लगते थे. आज ऐसा कुछ नहीं लग रहा था. पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. और ये क्योंकि उनका अंतिम पार्ट है, इसलिए उन्होंने ये फाइन संडे क्लोथ्स पहने हैं. और इस पैसेज के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंच जो है, ही इज़ फुल ऑफ रिग्रेट. उसको पश्चाताप है, उसको ये पश्चाताप है कि शायद वो आज ये पाठ नहीं सुन पाता, तो सदा अंतिम पाठ वो कभी अपनी भाषा का नहीं सुन पाता. तो आज उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि जब उसको ये लगा कि ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट है मिस्टर एम हेमल के द्वारा, तो उसको बहुत दुख हुआ इस चीज़ का. और आज उसको पश्चाताप हुआ कि काश वो अपने सर की बातें शुरू से आज तक सुनता रहता, तो शायद एक अलग ही बात होती. और ये जो इसका पश्चाताप है, ये भी अपनी मदर टंग के लिए, अपनी नेशनल लैंग्वेज के लिए, इसके लिए एक अटैचमेंट दिखाता है. यानी कि इस लेसन के द्वारा लेखक जो है एम हेमल और फ्रेंड्स जैसे कैरेक्टर्स के थ्रू, और जो गांव के लोग वहाँ पर बैठे हैं उनके द्वारा यही दिखाया गया है कि ये पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, और ये पर्टिकुलरली दिस इज द अफेक्शन फॉर देयर ओन लैंग्वेज.